Good morning everyone. This is the second video of chapter number 1, When I Failed. Now I am going to continue the story. In this chapter, APJ Abdul Kalam, he also shares his experience when he was a student of aeronautics at Madras Institute of Technology. Now, what is the meaning of aeronautics? Aeronautic means project of practice of flying aircraft. Aeronautic means practice of flying aircraft. इसका मतलब होता है कि हवाई जहाज को उड़ाने की विद्या को ही एरोनॉटिक्स कहते हैं. एंड वन डे हिज टीचर मिस्टर, once again I am going to repeat. In this chapter he shares his experience when he was a student of aeronautics at Madras Institute of Technology and his teacher was Mr. Srinivasan. His teacher was Mr. Srinivasan, who was also the head of that institution. One day Mr. Srinivasan divided his students in 4 teams and gave them separate works. Kalam's team had to design low-level aircraft. एक दिन जो मिस्टर श्रीनिवासन है वो अपने स्टूडेंट्स को 4 टीम्स में डिवाइड करते हैं और जो कलाम की टीम है दे हैड टू डिजाइन लो लेवल एयरक्राफ्ट. और जो कलाम की टीम थी उनको लो लेवल एयरक्राफ्ट क्या करना था, उनको डिजाइन करना था. कलाम एंड हिज टीम वर्कड वेरी हार्ड. Kalam and his team worked very hard because they wanted to impress their teacher with their project. Kalam and his team worked very hard because they wanted to impress their teacher with their project. अब जो कलाम और कलाम की टीम है उन्होंने बहुत मेहनत किया. वो मेहनत कर रहे थे ताकि वो अपने प्रोफेसर को अपने उस प्रोजेक्ट से खुश कर सके. After a few days later, when Mr. Srinivasan saw the design, saw the project, he looked very disappointed. As soon as Mr. Srinivasan looked the design, he looked very disappointed. He was not happy with the project of APJ Abdul Kalam's team. और जैसे कुछ दिन बीता, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने प्रोजेक्ट को अपने जो प्रोफेसर थे श्रीनिवासन जी उनको दिखाया. तो व्हेन ही सॉ द डिजाइन, व्हेन ही सॉ द प्रोजेक्ट, ही लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड. और जैसे ही उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की टीम को प्रोजेक्ट को देखा, उस डिजाइन को देखा, तो क्या हुए, वो बहुत निराश हुए. मीन्स ही वॉज नॉट हैप्पी विद दियर प्रोजेक्ट. वो एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम के प्रोजेक्ट से खुश नहीं थे. He said to APJ Abdul Kalam that I am not happy with your work. Means your work is unpleasant. You could do much better than this. Mr. Professor Srinivasan, he said to APJ Abdul Kalam that I am not happy with your work because you could do much better. और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि मैं, जो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि मैं आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं हूं, आप और बेटर कर सकते थे. आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स एपीजे अब्दुल कलाम became shocked. He became stunned. After hearing the words of Professor Srinivasan, APJ Abdul Kalam became stunned, became shocked, because he had been the topper in his class. Because APJ Abdul Kalam was topper, star students in his class, and he was never criticized by any teacher. जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा कि मैं आपके काम से खुश नहीं हूं, तो जैसे ही
इन शब्दों को एपीजे अब्दुल कलाम ने सुना, वो शॉक्ड रह गए, वो स्तब्ध रह गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्लास के टॉपर थे और अभी तक किसी टीचर ने उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया था। मीन्स फर्स्ट टाइम एनी टीचर वाज क्रिटिसाइजिंग हिम, फर्स्ट टाइम एनी टीचर वाज क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहली बार कोई टीचर एपीजे अब्दुल कलाम को आलोचना कर रहा था। और जो एपीजे अब्दुल कलाम थे अपनी क्लास के टॉपर थे, तो उनको अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी तक किसी टीचर ने मेरी कभी कंप्लेन नहीं की, कभी किसी ने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया। फर्स्ट टाइम ये सर मुझे क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दैट्स वाई एपीजे अब्दुल कलाम वाज वेरी सैड। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही सैड थे। क्यों सैड थे? क्योंकि पहली बार किसी टीचर ने उनको डांटा था या पहली बार कोई टीचर उनके काम से संतुष्ट नहीं था। मिस्टर Srinivasan, he told APJ Abdul Kalam that you have to create a Dralis design within 3 days. His professor told him that you have to create a flawless design within 3 days. And if you are unable to do so, means if you will not be able to make the design, if you are unable to make the design, your scholarship will be stopped, your scholarship will be cancelled. अब जो श्रीनिवासन है उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि विद इन 3 days you have to make a flawless design. जो प्रोफेसर श्रीनिवासन है उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि आपको 3 दिन के अंदर ही एक अच्छी डिजाइन बना के दिखानी है। मीन्स देयर शुड बी नो फॉल्ट इन दैट डिजाइन, उस डिजाइन में कोई भी फॉल्ट, कमी नहीं होनी चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू सो, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, देन योर स्कॉलरशिप विल बी स्टॉप, तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो क्या कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। मीन्स ही वांट एपीजे अब्दुल कलाम, इफ यू आर अनेबल टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन ए प्रॉपर वे, योर स्कॉलरशिप विल बी स्टॉप। एक प्रकार से मिस्टर श्रीनिवासन ने एपीजे अब्दुल कलाम को वार्न किया, चेतावनी दिया कि यदि आप 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो आपकी स्कॉलरशिप क्या हो जाएगी, रोक दी जाएगी। एट दैट टाइम एपीजे अब्दुल कलाम थॉट दैट हिज ड्रीम्स वुड बी स्पॉइल्ड। एट दैट टाइम ही थॉट दैट हिज ऑल ड्रीम्स एंड एम्बिशन वुड बी स्पॉइल्ड। उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यह लगा कि अब उनके जो सारे सपने वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि आप 3 दिन के अंदर काम करके नहीं दोगे तो मैं आपकी स्कॉलरशिप को रोक दूंगा। और स्कॉलरशिप ही एक जरिया था जिसके माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई कर पा रहे थे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम को लगा कि मैं 3 दिन के अंदर नहीं बना पाया तो जो मेरे सारे सपने हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चकना चूर हो जाएंगे। सो once again APJ Abdul Kalam started making his design. He worked very hard. Once again he started to make the design and he worked very hard. अब फिर से एपीजे अब्दुल कलाम अपने काम में लगा, फिर से डिजाइन बनाना शुरू कर दिए और बहुत दिन रात मेहनत करने लगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजाइन, आफ्टर मेकिंग द डिजाइन, ही शोड हिज प्रोजेक्ट टू मिस्टर श्रीनिवासन। और जब उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट को बना लिया तो अपने वो जो टीचर थे, प्रोफेसर थे श्रीनिवासन को दिखाया। वेन मिस्टर श्रीनिवासन saw the project, he hugged APJ Abdul Kalam. When Mr. Srinivasan he saw the project, he hugged APJ Abdul Kalam because he was very happy, because he was satisfied with his project. और इस बार जब एपीजे अब्दुल कलाम ने दोबारा उस प्रोजेक्ट को बनाकर अपने सर को दिखाया तो उन्होंने जैसे उस प्रोजेक्ट को देखा तो उन्होंने क्या किया, श्रीनिवासन ने एपीजे अब्दुल कलाम को गले लगा लिया। क्यों गले लगा लिया? बिकॉज ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, क्योंकि वह इस बार एपीजे अब्दुल कलाम के काम से क्या थे, बहुत खुश थे और
सेटिस्फाइड भी थे। मिस्टर श्रीनिवासन, ही टोल्ड एपीजे अब्दुल कलाम दैट ही वॉज नॉट डिस्करेजिंग हिम। मिस्टर श्रीनिवासन ने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा था, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज द रियल लाइफ। उन्होंने कहा कि जो क्रिटिसिज्म है वही वास्तविक सच है। मीन्स इफ एनी वन इज क्रिटिसाइजिंग यू, इट मीन्स ही इज योर वेल विशर। मिस्टर श्रीनिवासन, he told APJ Abdul Kalam that at that time I was criticizing you because you are a good student and you can improve yourself। उन्होंने कहा कि मैं इस समय आपको क्रिटिसाइज कर रहा था इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। मीन्स इफ एनी वन इज क्रिटिसाइजिंग यू, इट मीन्स ही इज योर वेल विशर। यदि कोई आपके सामने आपकी आलोचना करे, इसका मतलब आप समझिए वो आपका शुभ चिंतक है। और कोई व्यक्ति आपके सामने मीठा बोल रहा है तो इसका मतलब समझिए वो आपका वेल विशर नहीं है। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, आपके सामने बुराई कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वास्तव में वो आपका क्या है, शुभ चिंतक है। उस समय आपको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि जो व्यक्ति मेरा क्रिटिसिज्म कर रहा है, आलोचना कर रहा है, वही मेरा क्या है, शुभ चिंतक है। So he told APJ Abdul Kalam, Mr. Srinivasan told APJ Abdul Kalam that failure is the ladder of success. It means what is the theme of the lesson? The theme of the lesson is failure is the ladder of success. Failure is the ladder of success. इसका मतलब क्या हुआ, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। What is the meaning of failure of the ladder? What is the meaning of failure is the ladder of success? It means a person who hasn't seen failure, difficulties in his life, he or she cannot be successful in his life. Failure is the ladder of success का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी असफल नहीं हुआ तो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। मतलब हमको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो हमको क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो व्हाट इज द which message has been given in this chapter? Which message has been given in this chapter? इस चैप्टर में क्या मैसेज दिया गया है, बी ऑप्टिमिस्ट। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, बी ऑप्टिमिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्ट? ए पर्सन who looks the bright side of life. Optimist means a person who looks the bright side of life. Optimist मतलब आशावादी, जिसको हम कह सकते हैं ए पर्सन हु हैज पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करे उसी को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। सो द मैसेज ऑफ द पोएम इज, सो द मैसेज ऑफ दिस लेसन इज बी ऑप्टिमिस्ट एंड डोंट बी पेसिमिस्ट। तो इस चैप्टर का जो मैसेज है वो क्या है कि आप ऑप्टिमिस्ट बनिए, आशावादी बनिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। तो आज यहीं तक, फिर थर्ड वीडियो में हम ये जो इसका ये चैप्टर बचा हुआ इसको कल में क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।